جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان اسلام آباد سے، اور ہمارے خاص مہمان آج ہیں وجاہت مسعود لاہور سے۔ بڑا معروف نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں بہت فین ہوں ان کا، ذاتی طور پر ان کی تحریریں پڑھتا رہا ہوں، ان کو سنتا رہا ہوں، ہمیشہ ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے ہیں۔ وجاہت صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے موقع دیا۔ تو وجاہت بھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہمارے یہاں سیاسی معاملات چل رہے ہیں وہ تو آپ کے علم میں ہے، روزمرہ کی چیزوں پر تو ہم گفتگو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بنیادی ایشوز ہمارے یہاں ہر دور میں ایسے لگتا ہے کہ کنسسٹنٹ رہے ہیں، میں ان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جہاں سے یہ پورا معاملہ شروع ہوا اور اس کی بار بار بات ہوتی ہے نیوٹرلٹی کی۔ فوج کہتی ہے ہم نیوٹرل ہیں، اور ہم نے کئی مواقع پر اپنی تاریخ میں یہ سنا ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یا پس پردہ رہ کر یا پردے کے سامنے آ کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار ان کا باقی رہتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ باوجود ہے، یا اس میں کوئی ارادے کا عمل دخل ہے کہ جی نہیں آئندہ ہم ایسے ہی رہیں گے؟ وہ تھوڑا سا بے رنگ قسم کا شعر ہے سلیم احمد کا، لیکن وہ چونکہ سلیم احمد انتقال فرما گئے 1982 میں، تو 40 برس بعد ان کا شعر پڑھ دیا جائے تو کیا حرج ہے کہ تیری جانب سے دل میں وسوسے ہیں، تیری جانب سے دل میں وسوسے ہیں، یہ کتے رات بھر پھونکا کیے۔ میرے بھائی، ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، دیکھیے مجھے ایسی عادت ہو گئی ہے محتاط رہنے کی کہ میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی وہ نہیں کہہ سکتا ڈائریکٹلی جو مجھے کہنا چاہیے۔ ان کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ 1973 کے دستور میں لکھی ہے۔ آرٹیکل 245 یہ بتاتا ہے کہ فوج جو ہے اس کا کام ہماری جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، اور جہاں سول حکومت اپنی مدد کے لیے بلائے کسی خاص ضرورت پہ تو اس کے لیے آنا ہے۔ اس سے بہت پہلے 1948 میں جون میں کوئٹہ سٹاف کالج میں بابائے قوم نے اپنی لکھی تقریر ایک طرف رکھ کے فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ کے سینئر جو افسران ہیں وہ اپنے حلف کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ تو تقریر قائد اعظم کی موجود ہے، اور اس میں ان کا جو بہت کلیدی جملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا کام حکومت کے احکامات کی تعمیل ہے، پالیسی دینا جو ہے وہ ہمارا یعنی سیاستدانوں کا، سول حکومت کا کام ہے۔ تو بابائے قوم یہ اس نیوٹرلٹی کی تلقین تو قائد اعظم آج سے 74 برس پہلے کر گئے تھے۔ تو جب ہمیں یقین دلا کہ میں نیوٹرل ہو گیا ہوں تو پھر ہمیں اپنے ماضی کے تجربات یاد آتی ہیں۔ ایسے ترتیب میں چلتے چلے جائیں، ہم سے 72 میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، ہم سے 88 میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم سے 2008 میں کہا گیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ it doesn't please me to share this dismal dark view، لیکن اصل بات جو ہے وہ کسی کی ذات کی نہیں ہے، کسی ادارے کی نہیں ہے۔ بینگ پاکستانی ہم لوگ جو ہے وہ دستور کے پابند ہیں، ملک کے وفادار ہیں، اور فوج ہماری ریاست کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ Having said this, we have a history۔ ہماری ہسٹری زیادہ روشن نہیں ہے۔ اگر ہم بہت ہی نرم ہو کے بات کریں تو ہم کہیں گے کہ اٹ از اے چیکرڈ ہسٹری۔ اس کا آغاز جو ہے وہ اکتوبر 47 میں جنرل گریسی کی طرف سے قائد اعظم کی حکمت علی سے ہوتا ہے۔
इस तारीख का आगाज दिसंबर 1949 में जनरल इफ्तिखार खान के हत्यारे का हादसा जुम शाही कराची के पास होता है. ही वाज कमांडर इन चीफ डेजिग्नेट. मगर इसकी तहकीक नहीं की. अयूब खान तो एक मोस्टली स्टाफ ऑफिसर थे. कम्बैट एक्सपीरियंस उनका 2.5 दिन का था बर्मा में. एंड ही वाज सेंट बैक फॉर इनएक्सप्रेसिबल रीजंस. 2.5 दिन की लड़ाई के बाद बर्मा फ्रंट से. तो जब पाकिस्तान बना है अवैस भाई, तो हमारे हिस्से में हिंदुस्तान के वसाइल, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वसाइल थे, उसका जो है वो कोई 20% आया, उससे भी कुछ कम है समझिए. लेकिन हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान की 33% फौज हमारे हिस्से में आई. इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, और जिसकी तरबियत जो है वो किस तरह की थी. 30,000 ब्रिटिश तो हम पे हुकूमत नहीं कर सकते थे ना 40 करोड़ पे. उस जमाने में भी जो गैरिजन था और जो सिविल ऑफिसर्स होते थे, उनमें कशमकश हुआ करती थी, बालादस्ती की. बट हियर वी हैड डबल जेपर्डी. हमें जो सियासी क़यादत मिली विद अ फ्यू ऑनरेबल एक्सेप्शंस, वो इसी तरह की थी जिस तरह की हमने रिपब्लिकन पार्टी में देखी, कन्वेंशन लीग में देखी, पीएनए में देखी, आईजीआई में देखी, पीटीआई में देख रहे हैं. वो डिप्टी कमिश्नर के भेजे हुए लोग थे. 1946 में, 1945 में. आप पाकिस्तान जिस खित्ते में आज मौजूद है, यहाँ के किसी मुस्लिम लीग के उस रहनुमा का नाम बताइए जो 1945 से पहले मुस्लिम लीग में हो. नॉट इवन खिजर हयात, नॉट इवन सिकंदर हयात. तो कमजोर सियासी क़यादत और एक ऑर्गेनाइज्ड एंड इनहेरेंटली एरोगेंट डिसिप्लिन फोर्स, ये मुकाबला हुआ है. ज़ाहिर तौर पे जो है वो हमारे सामने नाम है कि इसमें कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग शामिल थे. गुलाम मोहम्मद का नाम आता है, जाहिद हुसैन का नाम आता है, इकरामुल्लाह साहब जो हमारे ख्वाजा सख्ती होते थे उनका नाम आता है, चौधरी मोहम्मद अली का नाम आता है. बट इट वाज इनएविटेबल, इट वाज इनएविटेबल. यानी 1953 के फरवरी में अमेरिकी सफीर से मुलाकात की है नए आने वाले कमांडर इन चीफ अयूब खान ने. और वो जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो कहते हैं कि हम सियासतदानों को ये मुल्क तबाह नहीं करने देंगे. अरे भाई आप कौन हैं? वो कोट करता है कि कमांडर इन चीफ ने मुझे यकीन दिलाया है कि अगर कोई भी सूरत हाल हुई तो हम मिलिट्री रूल जो है वो इम्पोज कर देंगे और हम सियासतदानों को ये मुल्क तबाह नहीं करने देंगे. ये मुल्क जो है ये 1953 के फरवरी में अयूब खान साहब के इस यकीन दहानी के बाद से इस हालत में है कि मैं अंधेरे में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ. ये वो अंधेरे हैं लोड शेडिंग के सर जो 2018 में खत्म हो गए थे. 2018 में लोड शेडिंग नहीं हो रही थी. बड़ी मेहनत करके हम इस नियमत को जो है वो 4.5 साल में वापस लेके आए हैं. तो हमने इस मुल्क पे उस बंदूक के मदद से कब्जा किया जो इस मुल्क के लोगों ने अपनी हिफाजत के लिए अमानत के तौर पर सुपुर्द की थी. What is a commission? A commission, by going by the dictionary, it's a responsibility. It's a commitment. आप मुझे कमीशन करते हैं कि भाई तुमने 10:30 बजे मेरे प्रोग्राम में आना है. So I'm duty bound. I have been commissioned to protect the country, not to occupy it. When we occupied the country for 13 years continuously, we lost half the country. और उसके 5.5 बरस बाद हम दोबारा आते हैं और मैं जिसे कहते हैं कि एक मामूली तालिब इल्म होते हुए हाथ पाथ की बात करनी चाहिए. ऐसी बात एरोगेंस में नहीं आनी चाहिए क्योंकि किसी के पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती. मेरे इल्म के मुताबिक भुट्टो हुकूमत को डे 1 से एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया गया. तो भुट्टो साहब हैड हिज ओन वीकनेसेस, दे आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री. उनकी अपनी जाती और सियासी कमजोरियां थीं. उनको हम ग्लोस ओवर नहीं कर सकते, हम उन पे पर्दा नहीं डाल सकते. बट इट इज आल्सो क्लियर
that he was being undermined continuously. बेनजीर भुट्टो को 2 दफे और 2 दफे नवाज शरीफ साहब को 90s में एक दिन चैन से नहीं बैठने दिया गया। और मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अब बजाय इसके कि जरा बात फैल रही है, मैं समेट के मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला किसी के जाती जापसंदी का नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है to monopolize the resources of this country, to steer the country the way it serves only one institution and not the people. ये लोगों के हक के फैसला साजी पे इजारे की लड़ाई, सुना, ये इतना बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। भाई जावेदुर रहमान तशरीफ फरमा है, वो मुझसे बहुत बेहतर तौर पे आपको बता पाएंगे कि इस मुआशी मुफाद की जड़ें कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ इसकी पेनिट्रेशन है और ये कैसे काम करता है। तो इसलिए ये जो डिक्लेरेशन है जो 12 अप्रैल को DGISPR ने बहुत खुले लफ्जों में कहा, एज ए पाकिस्तानी आई शुड वेलकम इट एंड आई शुड इंसिस्ट काइंडली स्टिक टू इट, डू what you are saying right now. But simultaneously, I know that the structural and institutional interests would compel the possibility of a comeback of the darker times. अभी तो ये है ना कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि बॉटमलेस पिट में है इकोनॉमिक क्राइसिस की, और बहुत ही कम कोई ग्लिमर ऑफ होप है इस वक्त। और दूसरा ये कि सफारती सतह पे, खारता सतह पे, इंटरनेशनल कमेटी में वी हैव बिकम पराया, और उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। आई बिलीव द वर्ल्ड हैज बीन वेरी बेनेवलेंट टू आवर कंट्री व्हिच प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल, इट डजंट हैव मच टू सेल, उसके बावजूद हमने सर्वाइव किया है और हम एक लंबा अरसा रिलेटिवली लो मिडिल ब्रैकेट में नहीं, बट वी आर स्टक नाउ। हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो पिछले 22, 25, 24 साल से वो 15, 18, 20 कम होते हैं तो 2-3 पे आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं तो 13, 14, 16, 18 हो जाते हैं। इसी अरसे में इसी ब्रैकेट से इंडिया निकल के 600 प्लस में गया है, और हमारा जो जीडीपी का वॉल्यूम है वो 2018 में जो 315 पे था वो इस वक्त कहीं 290 के करीब है। बट एसेंशियली हमारे लिए जो बहुत बड़े मसाइल हैं इक्तिसादी, मेरी राय में उन्होंने मजबूर किया है कि इस बात को तस्लीम कर लिया जाए पॉलिसी लेवल पे कि हाइब्रिड रिजीम जो है वो पाकिस्तान को पुल आउट नहीं कर सकती, आगे लेके नहीं चल सकती। लेकिन आई हैव सीरियस डाउट्स, I have serious doubts. बिल्कुल सही। तो आपने किसी हद तक उस सवाल का जवाब दे दिया जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आखिर इस दफा न्यूट्रलिटी की जरूरत क्यों पेश आई, और जो तारीखी हवाले आपने दिए हैं उनसे भी हमें यही पता लगता है कि दावे तो किए जाते हैं न्यूट्रलिटी के हमेशा, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशनल एक सोच है वो हमेशा नए आने वाले सिपा सालार की सोच के ताबे हो जाती है, और जो भी फिर उसकी मर्जी और मंशा होती है उसके मुताबिक काम आगे चलता है। तो इस वक्त ये जो तारीख का आपने एक अहाता किया है अभी इस मुख्तसर वक्त में, इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं और उनके हामी ये कह रहे हैं कि वो ये तारीख का धारा बदल देंगे, वो फौज को भी मजबूर कर देंगे, वो तमाम दूसरे इदारों को भी मजबूर कर देंगे कि उनको वापस इक़्तिदार में लाया जाए, और जो गलतियां हैं जिनको वो कोट अनकोट गलती कहते हैं उसको सुधारा जाए। तो आपको लगता है कि उनके अंदर इतनी सकत मौजूद है या ये बस दावे ही हैं? उनकी सकत का अंदाजा करने से पहले अवैस भाई हमें ये डाइसेक्ट करना चाहिए कि दरअसल इमरान साहब क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट ही इज आस्किंग फॉर इंटरवेंशन ऑन हिज बिहाफ। वो जो चाहते हैं कि उनकी तरफ से उनकी लिए जो है वो मुदाखलत की जाए, वैसी ही मुदाखलत की जाए जैसी हम 30 अक्टूबर 2011 ऑनवर्ड देखते आ रहे हैं, विच कल्मिनेटेड
in July 2018, तो वो मुदाखलत मांग रहे। मुदाखलत वो नहीं मांग सकते जब तक उनको जो ज़ेरे ज़मीन चट्टानें हैं उनमें से कुछ की जो है वो कुछ टेक्टोनिक प्लेटों की हमायत हासिल नहीं। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी की रवायत रही है, आर्मी चीफ इज द अल्टीमेट अथॉरिटी as long as he happens to be the army chief. So that gives me optimism that ये जो इस वक्त कश्मकश है, महाजर आई है, ये खान साहब अपने बल पे करने वालों में से नहीं है। जावेद साहब तशरीफ फरमा हैं, ये आपको गवाही देंगे कि 2007 में चंद घंटों के लिए लॉकअप में गए थे इमरान साहब। इमरान खान साहब ने अभी थोड़ी देर में यहाँ पे 12 बज जाएंगे, बल्कि 12:14 हो गए हैं। 13 मई शुरू हो गई है। 13 मई हमारे मुल्क की वो तारीख है जब सहाफियों को कोड़े मारे गए। इस मुल्क में जो सियासी कारकुन हैं वो फांसियों पे झूले हैं। लोगों को उनके नाम याद नहीं है कि हमीद बलोच कौन था, नजीर अब्बासी कौन था, हसन नासिर कौन था, जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जो केस था वो दरअसल क्या था। किस तरह से हमारे मुल्क में सियासतदान को एक चोर और सियासत को जो है वो एक जुर्म बनाया गया है। सियासतदान को चोर कहने वाले वो हैं जो ये चाहते हैं कि उनके डाके पे नजर न जाए। चोरी छुपके की जाती है, डाका बंदूक दिखा के मारा जाता है। तो इस मुल्क पे डाके मारे गए, लेकिन निज़ाम जो है वो चोरी के ये जो हकीकत है इसे चोरी के इल्जामात में छुपाया जाता है। इमरान खान साहब की बेशक एक ख़ास नस्ल है, एक ख़ास तबका है, उसमें अर्बन मिडिल क्लास भी शामिल है। उनके देखिए आप मुझसे बेहतर जानते हैं 1984 ऑनवर्ड हमारे मुल्क में स्टूडेंट यूनियंस नहीं है, और 58 ऑनवर्ड जो है वो हमारे मुल्क में नस्ल दर नस्ल ये सबक सिखाया गया है कि सियासतदान नाअहल होते हैं। जिन्होंने ये मुल्क मेज पे बैठ के जीता वो नाअहल होते हैं, जिन्होंने मैदान जंग में हारा वो अहल होते हैं। और जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आते हैं सैलाब में, और आपको पता है कि मीडिया कैसे जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, तो नस्ल दर नस्ल ये सबक पढ़ाया गया है। खान साहब का एक हल्का मौजूद है, मैं आपसे कहता हूँ वो पेरेनियल मुस्तकिल किंग्स पार्टी, ये वही पार्टी है जो नवाज शरीफ साहब को भी दी गई थी, लेकिन वो बदकिस्मती से गद्दारी कर गए 93 ऑनवर्ड। बीच बीच में उन्होंने सियासत तो की थोड़ी बहुत, लेकिन एसेंशली फ्रॉम 93 ऑनवर्ड उनको निशानजद कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी को 77 ऑनवर्ड निशानजद कर दिया। ये जो बार बार कहते हैं इन्होंने बारियां लगा रखी, अरे भाई ये जिस मुल्क में आप तशरीफ फरमा है वहां पे 2 पार्टी सिस्टम जो है 1789 ऑनवर्ड चल रहा है, उसे जो है वो 233 बरस हो गए। ये बरतानिया जो जमहूरियत की माँ कहलाता है, ये वहां पे जो है वो कंजर्वेटिव और लेबर नाम बीच में बदल दे रहे हैं पार्टीज के, लेकिन 2 पार्टियां ही नहीं। हर मुआशरे को में एक कुव्वत होती है जो मुआशरे को आगे लेके जाती है, फिर एक कुव्वत होती है जो मुआशरे को ज़ाब्ते में लेके आती है। जो ज़ाब्ते में लेके आती है वो कंजर्वेटिव है, जो जब देखे कि मामलात रिडंडेंट हो गए हैं, इसको तब्दीली की जरूरत है, आगे लेके जाती है। उसको आप लेबर कह लीजिए, डेमोक्रेट कह लीजिए, फॉरवर्ड लुकिंग कह लीजिए, जो भी आपका दिल चाहे, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। वहां लोगों को तकलीफ नहीं होती कि ये 2 पार्टी सिस्टम जो है ये बारियां ले रहे हैं। ये बाकायदा हमें ये सबक पढ़ाए गए हैं। तो खान साहब के पास एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट बेस मौजूद है, लेकिन उनकी जो मेरी नजर में जो उनकी बुनियादी कमजोरी है वो ये कि उनका जो नैरेटिव है, उनका जो माइंडसेट है वो पॉलिटिकल नहीं है। प्रो डेमोक्रेसी होना तो बाद में आएगा ना, वो सिर्फ से पॉलिटिकल ही नहीं है। वो अपने पर्सनल कैरिज्मे में यकीन रखते हैं, वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, और उन्हें आदत है
بہت زیادہ پیمپرنگ کی. وہ پیمپرنگ بھلے ان کے فینس کی طرف سے ہو یا ان کے جو اتالیق رہے ہیں مرحوم مجیب الرحمان، لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان، گل حمید، شجاع پاشا صاحب، ظہیر الاسلام فاروقی صاحب، اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور کور پروفیشنل ہاتھوں میں ہے. ہمیں آج ہی بتایا گیا، کسی اور کور کے بارے میں تو یہ کبھی نہیں بتایا گیا. ویسے ضرورت محسوس. آپ نے بڑا دلچسپ یاد کرایا. آج کل ان کے حامی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جی فوج اگر نیوٹرل نہ ہوتی تو عمران خان صاحب اقتدار سے جاتے نہیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر فوج نیوٹرل ہوتی جب اس کو ہونا چاہیے تھا تو شاید عمران خان صاحب سیاست میں آتے ہی نہیں. بہرحال آپ نے جاوید صاحب کی طرف اشارہ کیا تھا اور آپ نے عمران خان صاحب کے متعلق کہا کہ وہ قید برداشت نہیں کر سکتے. تو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ حکومت کیا ان کو قید کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. ایک تو جو قید کی باتیں ہیں یہ کافی زیادہ چل رہی ہیں ان دنوں کے اندر. ایک اور کیونکہ وہ خود بھی پی ٹی آئی کی طرف سے خود بھی کہنے لگ گئی ہیں کہ ہمارے پاس اب پلان بی بھی ہے، موجود ہے اگر گرفتاریاں کی گئی. لانگ مارچ کی باتیں کبھی 20 لاکھ، کبھی 10 لاکھ اور کبھی اس طرح سے بڑھتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں. کبھی میر جعفر، میر صادق بھی چینج ہو رہی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس میں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پورے جو سیاسی منظر نامہ جو بن رہا ہے. آج بلاول صاحب نے بات کی کہ اگلے جو الیکشن ہے یہ خونی الیکشن ہوں گے. مجھے وجاہت صاحب یہ نہیں سمجھ آتا کہ کون سے ایسے الیکشن ہیں جنہیں کہا نہ گیا ہو کہ یہ خونی الیکشن نہیں ہوں گے. ہر الیکشن کے بارے میں ہم اس قسم کی باتیں سمجھ رہے ہیں. اب اگلا جو سنیریو بن رہا ہے، ایک طرف لانگ مارچ کا، پارلیمنٹ تو پوری کمپلیٹ نظر ہی نہیں آ رہی جو چیزیں ہیں. اور ایک چیز اور نظر آ گئی کہ الیکشن کی طرف یہ انہوں نے اب آنے والے دنوں میں لازمی جانا ہے، لیکن الیکشن ریفارمز کیے بغیر یہ نہیں جا سکتے. الیکشن ریفارمز کے بغیر اس لیے نہیں جا سکتے کہ ان کو دونوں پارٹیز کو، خصوصاً جو مین پارٹیز اب جو رولنگ پارٹیز ہیں، انہیں ڈر ہے کہ یہ جو انہوں نے الیکشن ریفارمز جو پچھلے دنوں انہوں نے الیکشن ریفارمز کا نام دے کر پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ریفارمز کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی. تو آپ اس سینیریو میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا بننا ہے اگلا سینیریو جو لانگ مارچ بھی ہے، موجودہ حکومت، موجودہ نیشنل اسمبلی، الیکشن ریفارمز، ان سارے سینیریو کے اندر؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جاوید صاحب. واقعتاً الیکٹرل ریفارمز صرف یہی دو چیزیں نہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی یا اوورسیز پاکستان کی، اس کے علاوہ بھی ہمیں الیکٹرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں انفیکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو پورے طور پہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں خود مختار ادارہ بنانا چاہیے. ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں. I have very serious doubts کہ long march will take place. I have very serious doubts. کیونکہ میں آنے والے 2 ہفتوں میں کچھ میجر تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی اور پولیٹیکل لیول پہ بھی. تو جہاں تک قید کیے جانے کا یا مقدمات بنائے جانے کا تعلق ہے، ایک جمہوری کارکن کے طور پہ اور اپنے ملک کا خیر خواہ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب کو سیاسی میدان سے کسی قانونی حربے کے ذریعے کسی غیر سیاسی طریقے سے باہر بھیجنا جو ہے یہ ملک کے لیے مفید نہیں ہوگا. اٹ از اے پولرائزڈ نیشن. اس میں وکٹمائزیشن کی ایک ہسٹری ہے اور وکٹمائزیشن جو ہے وہ پھر پرمیٹ کر جاتی ہے جڑوں میں. اس سے سیاسی عمل کو، دستوری عمل کو اور جمہوری ثقافت کو نقصان پہنچتا ہے. عمران خان صاحب اگر بالکل ہی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ کسی کے ہاتھ پہ تھوکے ہی نہیں، مجھے اریسٹ کر لو، کوئی ایسی کوئی حرکت نہ کریں، انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اور معمولی یا ڈوبیس یا نیبولس بہانوں سے
मुकदमात भी नहीं बनाने चाहिए। फिर आपको पता है ना कि वो फिर लंबे चलते हैं, फिर वो कहते हैं जी एनआरओ दे दिया और एनआरओ ले लिया। वो बनाने वालों ने खुद ही तो माना था कि भाई ये तो इंतकाम में बनाए गए थे, मिसाकी जमहूरियत क्या था, इट वाज एन एक्सेप्टेंस ऑफ दैट। सो आई वुड से कि इमरान खान साहब अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो मैं नहीं समझता कि वो इस मुल्क की जमहूरी कुफ्तों का सलमानों का मुकाबला कर सकते हैं। इवन आई हैव डाउट्स कि वो फेयरेस्ट इलेक्शन भी के नतायज भी होंगे, अगर वो उनके हक में ना हो तो वो नहीं माने। इनका मिजाज, उनकी सियासत इसी तरह से बनी है, लेकिन उसका मुकाबला सियासी तरह से करना चाहिए। राना सनाउल्लाह वाला जो नुस्खे हैं वो मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। हमने इस मुल्क में सैफुर रहमान को देख रखा है, हमने वो अभी जिनका इंतकाल हुआ रहमान मलिक साहब उनको देखा, हमने नसीरुल्लाह बाबर को 50 में देखा। तो हमने जो है वो देखा है कि जब सियासी अमल में रियासती मशीनरी को और या अदलिया को घसीटा जाता है तो उससे नुकसान। तो मैं जो देख रहा हूँ वो ये कि इमरान खान विल रन आउट ऑफ गैस। ये जो इतना ज्यादा, एक तो हमारे यहाँ रवायत है ना, जब कोई हुकूमत से निकलता है तो उसके लिए हमदर्दी की लहर पैदा होती है, और वो छोटे छोटे कस्बों में जा रहे हैं, इतना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं है। और लोगों ने आपने नोट फरमाया कि पिछले एक हफ्ते में अब वो अमेरिकी साजिश का बयानिया जरा पीछे चला गया, अब मुकामी किरदारों पे बात ज्यादा आ रही है, इसलिए कि लोग उसको बाय नहीं कर रहे। वो एक फिक्शन है, वो एक घड़ी हुई बात है। उसको जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी मुस्तनद मकालमे में साबित नहीं किया जा सकता। सो खान साहब को ऑर्गेनिक तरीके से चलने देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उनके जो वफादार या उनके जो डाई हार्ट उनके सपोर्ट मौजूद रहे। And it may not be the largest party, but it will continue to be a significant political force for quite some time to come. उसको फेस करना चाहिए politically, not through unconstitutional, illegal or undemocratic methods. ये मेरी राय है। इलेक्शन के बारे में जैसे आपने फरमाया, मैं भी आपसे ठीक मुत्तफिक हूँ कि अर्लीस्ट जो है पॉसिबल वो है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन इन सम टाइम इन अक्टूबर और नवंबर, और जो अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन हो सकते हैं वो जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं। इतलात के मुताबिक जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में इन्फॉर्म किया है कि उन्हें इंटिमिडेट किया जा रहा है मुल्क के वज़ीर आज़म को कि आप 15 दिन के अंदर असम्बलियाँ तोड़ें और इंतखाबात करवाएं। ये इस तरह का दबाव है जो 2014 में आपको याद होगा रात के 11 बजे इसहाक डार साहब के पास भी एक प्याम्बर पहुंचा था। वो प्याम्बर आजकल भी बहुत सरगर्म है, जिसे वो जावेद भाई बटरोल दरख्त ने कहा ना कि बदनसीब है वो कौम जिसे हर रोज एक हीरो चाहिए। तो उसको हमारे हालात में बदले तो वो ये है कि बदनसीब है वो कौम जिसे हर रोज सियासी निगोशिएशंस के लिए एक टाइकून चाहिए। तहरीक लब्बैक से बात करनी होती है तो एक और टाइकून सामने लाया जाता है। इस वक्त वो एक और टाइकून है, वो भी उन्हीं की तरह का, उसी तरह का कैरेक्टर। तो अंदाजा फरमाइए कि मुल्क की किस्मत के फैसले वो लोग कर रहे हैं जिनकी माली शफाफियत जो है क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल, और जहाँ पे आपने बात खत्म की है मुझे लगता है कि वो सर्कल बैक करके वहीं चली गई है जहाँ से हमने गुफ्तगू शुरू की थी, न्यूट्रलिटी के लफ्ज से और उसके पस मंजर में क्या छुपा हुआ है। बहरहाल मुख्तसर वक्त में हमने जो हमारी तारीख है और उस तारीख से हमें आज के हालात के बारे में क्या पता चलता है उसके बारे में भी आपसे जाना, और आइंदा का जो मंजरनामा आप देख रहे हैं उसकी भी एक झलक आपने हमें दिखाई है। इमरान खान साहब तो ये वाज़े कर चुके हैं कि वो इलेक्शन के नताइज तब तक नहीं मानेंगे जब तक उनके हक में नहीं होते, वो 2/3 अक्सरियत नहीं लाते, वो इनकलाब की बातें कर रहे हैं, और उसका सियासी तोड़ क्या निकालती है ये हुकूमत, ये अब देखना होगा। आपको हम जैसे जैसे ये हालात अनफोल्ड होंगे आइंदा भी ज़हमत देते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे लिए वक्त निकालते रहेंगे।
جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ وجاہت صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ، آئندہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔